Radio City Time Check. हाय 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 दिल्ली वालों जरा घड़ी तो मिला लो 8:01 यानी 8:01 रेडियो सिटी। दिल्ली मरेगी, कुत्ते की मौत मरेगी, कहीं ना कहीं मरेगी। क्या करूं, कहाँ चले जाऊं, कहीं ठिकाना नहीं, कहीं ठिकाना नहीं हमारा गरीब का। अरे बाप रे। Mr. S. Raghunathan, Chief Secretary, Delhi. Who better than the Chief Secretary himself to kick-start this process? Here is an opportunity for us to rebuild Delhi. What will be Brand Delhi? What is the USP? We can really rebuild Delhi Paris is known as the fashion capital of the world. without any slum. Singapore for its impeccable infrastructure. That's my vision. A modern city with growing needs and actually moving towards them to fulfill these needs. That's my vision. Singapore, That's my vision. Las Vegas, That's my vision. The future is how to move from the walled city to be the world city. Given a chance, I can do it. हांगकांग बाजार बिल्कुल आपके नजदीक at Sector 57 गुड़गांव। We aim for your business to flourish. We are committed to the success of your endeavors. धड़कते दिल्ली, दुनिया ही दिल्ली, दिलदार दिल्ली। धड़कते दिल्ली, दुनिया ही दिल्ली, दिलदार दिल्ली। The vibrancy, the life, the future, the dynamicity, the aliveness basically of Delhi is just the word capital with an exclamation mark. Because capital means more than one thing. It is just top of the line. Capital. दिल्ली को पेरिस बनाना चाहती है जी। पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, तो पेरिस बनाऊंगा दिल्ली को। Enough said and done. I think we have to move from the saying stage to the doing stage. A city that tourists would love to visit, shoppers' paradise, a happening business destination, top-class medical facilities, center for higher studies, an entertainment and cultural city. What are the top 3 happening places of Delhi? So happening. You hear it all the time, and then you realize you're not happening in that sense. A. Delhi Heart. ये मेरी दिल्ली है. Wow, it's quite a bit. B. Ansal Plaza. ये मेरी दिल्ली है. 3. Sarojini Nagar. ये मेरी दिल्ली है. 4. South Extension. मेरी दिल्ली है. मेरी दिल्ली है. मेरी दिल्ली है. If there are any questions that you'd like to address to any of the members of the panel, so be it. So, ladies and gentlemen, this discussion is now thrown open to the floor. DDA का मतलब ऑर्डर है कि झुग्गियाँ तोड़ो। 2010 में ये कॉमनवेल्थ गेम होने, जिसके लिए सारी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। जब नहीं मिला उनको मकान तो झुग्गी झोपड़ी लगाने पड़ा और गांव में कोई रोजगार खत्म। गांव में तो रोजगार था ही नहीं और जो लघु उद्योग था कोई काम था तो वो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने। तो उन्होंने तो शहर में आना ही है और यहाँ आके काम तो उनको कोई रिक्शा खींचने लग गए, कोई रेडी पटरी का काम करने लगे, रोजगार थोड़ा बहुत करने लगे। तो रहने की जगह कहाँ, आमदनी इतना नहीं होता। 1600 से लेके 2000 तक तो मजदूर का पे, तो कहाँ से मकान किराए पे लेंगे, किराए में लेंगे तो कहाँ से देंगे। और दूसरी बात, पैसा होने पर भी दिल्ली में किराए का मकान मिलता नहीं। अच्छा थोड़े पैसों में भी नहीं मिलता, वैसे मिलता भी नहीं।
तो बेचारों झुग्गी बनाने पड़ा। हमको घर से बेघर कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे बच्चे पढ़ रहे थे तिलक मार में, अब हम कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे। अरे बाबा, Beautiful landscaping, world-class planning, breathtaking architecture, lifestyle zones, club or multiplex, a wide choice of apartments and villas. किस लिए तोड़ें, किस लिए तोड़वाएं, यही बात नहीं पूछने आप। We have wonderful monuments and the new monuments are coming up. बारात घर बन गया, इसके वजह से वो लोग सोचे कि इन लोगों के रहने से हमें प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी होने को दिक्कत हो रही है, इसी वजह से इनकी झुग्गी हटाई जाए। We have tremendous heritage now buttressed by new heritage buildings which are coming up. होटल वाले बोले हम 8 मंजिल बनाएंगे, यहाँ झुग्गी झोपड़ी में कौन मेरे खाने आएंगे, इस चक्कर से तोड़ दो इसको। There are wonderful hospitals, including the hospital which I am the chairman, getting accreditation from the United States, providing top class facilities. झुग्गी तो ये कम से कम 5-6 हज़ार जो तोड़ी है, बोलेगा कि यहाँ पे गंदगी करते हैं, ये करते हैं। But Brand Delhi has the vivaciousness, the vibrancy and life. कि भाटी में हम 40-45 साल से बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा हमारा गांव शहर बस गया वहाँ पे। अब वो कहते हैं कि इसको हटाकर हम सिर्फ क्या करेंगे, पर्यावरण बनाएंगे। To me, Brand Delhi is a city with green coverage, which is at par with the best in the world. झुग्गियाँ उजाड़ दिया जा रहा है तो वह पार्क बना दिया जा रहा है। To get a flavor of India or a window to India, Delhi is it. फार्म के हैं उनका तो नहीं तोड़ा जा रहा है, जो हम गरीब आदमी हैं वो हमारे ही तोड़ा जाएगा खाली। A city becomes a popular destination for investment and tourists when its assets and infrastructure help it stand out prominently in international comparisons. बड़े-बड़े लोगों के फार्म हाउस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, जिसमें बड़े-बड़े केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने फार्म हाउसों पे कब्जा कर रखा है, फार्म हाउस बना रखे हैं पूरी की पूरी पहाड़ी पे, अरावली पर्वत का रिज के ऊपर राधा स्वामी का बहुत बड़ा सत्संग भवन है, उसको क्यों नहीं छुड़ाया जाता? बापू आसाराम ने इतना बड़ा रिज पे कब्जा कर रखा है, उसको क्यों नहीं छुड़ाया? जगदीश टाइटलर ने रिज के ऊपर कब्जा कर, उसको क्यों नहीं तोड़ा जाता वहाँ पर? कि गरीब आदमी के लिए कानून है। भवन हम नहीं जाना चाहते हैं, भवन हम नहीं जाएंगे, वहाँ पानी भी का नहीं है, लैट्रिन भी नहीं है, कुछ भी लाइट है, पानी, हम वहाँ मरने कहाँ जाएंगे? ये सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। भवन हम नहीं जाना चाहते हैं, भवन हम नहीं जाएंगे, वहाँ पानी भी का नहीं है, लैट्रिन भी नहीं है, कुछ भी लाइट है, पानी, हम वहाँ मरने कहाँ जाएंगे? इससे बढ़िया कुछ मत है। चलता है उदास निहारी पर, हल्की लीक अब भी बनती है धरती पर, चीखती धरती पर। हम तो अभी जाने वाले हैं नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता रहता है, सवाल के कंधों पर सवार होकर कद हुए जज्बात की कसम खाकर। जब तक रहेंगे एक बुढ़े से लेकर जवान तक यहाँ पे कुर्बानी देंगे। कद हुए जज्बात की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथ की गांठों की कसम खाकर। But we need to start this exercise now. With the Commonwealth Games around the corner, we at CII feel that the time for this idea has arrived. सन 70 का आया हुआ वहाँ पे हमारी बढ़िया थे, संजय गांधी ने हमारा गांव बसाया था, वहाँ माइंस चलती थी, उसमें हम काम करते थे और इन लोगों ने हमारे घर तोड़ दिए। हम यहाँ सन 1980 से ये नवनीति सोसाइटी जब बनी, इसका हम लोगों ने ही ईंट का पत्थर का काम करवाया, सारे लेबरों ने मिलके। 35 साल 40 साल आदमियों ने यहाँ बिता दिए। बताइए, घर भी छोड़ दिया, गांव भी छोड़ दिया और यही घर यही गांव सब समझ लिया। जहाँ पे चिड़िया को दाना मिलता है वहीं
कमाना खाना होता है। You know, if you notice, each colony in Delhi is surrounded by at least like Vasant Coast, it's surrounded by Kishangarh, it's surrounded by Masoodpur, 3-4 slums. And you know, that's where all the bad crowd comes in from, that's where all the crime comes in from, and that's where all the filth comes in from, you know, all the dirt and everything bad, all the diseases and all, they're all proper from the slums. So I think slums should be removed. झुग्गी झोपड़ी वाले जहाँ भी रहते हैं गंदगी फैलाते हैं, इसीलिए इन लोगों को हटा दीजिए। इनको मतलब हटा के कहीं टाल दो या गांव चले जाएं या कहीं भी चले जाएं। इनको कोई सुविधा तो भी दी ही नहीं जा रही है। अब ये कीड़ों मकोड़ों की तरह मरने की तरह है, और क्या है इसमें, क्या है? ना चोर है, ना डकैत है, ना वो है, अपना हिसाब से अपना मजदूरी करके खा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने पाल रहे हैं पेट। आज भी इस सारी सोसाइटी में हमारी माँ बहनें सारे बर्तन धोते हैं, कोई ड्राइवरी करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, कोई प्लम्बर का काम करते हैं, कोई गाड़ी साफ करते हैं। आज भी इन सोसाइटी में सारे झुग्गी के सारे लोग इन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया। जो कहते हैं कि जमुना गंदी कर रही है मजदूर गंदा कभी नहीं करता। उनके पास पीने का तो पानी नहीं है, वो पानी कहाँ वहाँ जमुना में जाएगा। ये सब फैक्ट्रियों का पानी है, जो दिल्ली के अंदर 19 नाले जो हैं उसका पानी उसके अंदर जा रहा है। बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कोठियाँ बनी हुई, उनका सीवर लाइन उसके अंदर जा रही है। मजदूर का कौन सा पानी, 2 बाल्टी पानी लाता है, उसमें नहाए कि वो कहते नहीं कि एक इंसान अपना अंगोछा नहाएगा कि निचोड़ेगा। यूँ सोचा जाए कि सुनामी जिस तरह आई थी पहली बार, उस तरह सुनामी हमारे जस्ट सुनामी की तरह ही हमारे साथ हुआ। ना ही हमें कोर्ट का ऑर्डर दिखाया गया, ना हमें नोटिस दिया गया। हम थाने पहुंचे सारे पब्लिक को लेके, तो थाने से ये खबर मिला कि हमारे पास तुम्हारा कोई नोटिस नहीं है, ना ही हम तुम्हें दिखा सकते। तो उन्होंने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, आ गया है, मैं उसको तोड़ दूँगा। सुबह 7:30 बजे हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी हैं। हमारे के चाहे कोई डेट देता है भाई इतना दिन में तुम्हारे खाली करना पड़ेगा, हम अपना व्यवस्था कर लेता। अब एकाएक जैसे तैसे तोड़ के भगा दिए। Any common man should have all the facilities that a rich man has in the city. That is the world class city. हम तो ऐसे घूम रहे, हमारा आदमी ख़त्म हो गया उसी दिन 20 तारीख को ही। उनके साथ सुबह ही बोल रहे थे मेरे को चाय बना दो, मैंने चाय बना के दिया तो खेरा अपना सामान भीड़ा कर लो। अभी बिल्डोजर आ रहे, ज़्यादा पुलिस आ रही है फॉरेस्ट, तो ऐसे सामान उतारने के लिए ही लड़के ऊपर हटाने छड़ा, उस एकदम कह रहा मैं थोड़ा पानी पिया दो। पानी पियाने में बस ऐसे ऊपर को जाकर ऐसे मुंह फाड़ के आँख फाड़ ख़त्म हो गए। और वहाँ से उन्हें पुलिस वाले ने बाहर रोड पे डलवा दिया और खेरा झुग्गी तोड़ दो। Express Builders presents Express Garden at Indirapuram. Enjoy world-class standard of living at Express Garden, Indirapuram. सामान बांधे हमने, जब भी उनने हमारे साथ में गद्दारी करी थी, सारा सामान हमारा बर्बाद कर दिया। दीवार लुढ़ गई, हमारी लड़की थोड़ी सी बच गई, उसके तले आने मेरे पैर में चोट आ गई। पुलिस ने डंडे मारे, बोला मेरे जल्दी बाहर निकलो वरना डंडे मारेंगे। निकले नहीं, सामान निकाले, डंडे मारे। दारू वारू पी के एक दिन झगड़ा किया, यहाँ पे आ गए 2-3 पुलिस वाले और लेडीज़ों से गलत बोलने लगे। झुग्गियाँ जो पन्नी उन्नी डाल रखी है वो पन्नी भी हटा दी उन्होंने, और वो उनसे बोलने लगे चलो बाहर निकलो। और एक लेडीज़ को ज़बरदस्ती उन्होंने हाथ पकड़ के और अंदर घसीट रहे थे, इसमें ही सारी लेडीज़ से हम आ गई। तो उसके ऊपर जैसे मारने के लिए हम चले तो वो इधर से लेके उधर तक भाग गया। And I think Delhi now means not just to me but I think for people all across the country a symbol of what is increasingly becoming possible. And there are individual areas where there's been a problem. The city's identified the problems. You can say the city did it, you can say the courts did it, you can say the government did it, you can say the public did it, you can say the media forced people to do it. However it happened, pollution found, problem identified, solved. जो हमारे रहने के सबूत हैं यहाँ पे, उनकी फोटो स्टेटस, जैसे कि आई कार्ड हुआ, जैसे कि टोकन हुआ, जैसे कि राशन कार्ड हुआ, ये सब हमारे प्रूफ है। ऐसा तो दूसरा देश भी नहीं करता। अगर दूसरे देश में ऐसे चले जाओ ना, दूसरा देश भी ऐसे नहीं करने का, इतना नाजायज जितना ये अपने देश की सरकार ऐसा कर रही है, जितना ये बुरा अंधा कानून है। पक्ष अमीरों को लेते हैं, नेता जो कहता है वही काम जज करता है। सुप्रीम कोर्ट मिला जुला है, जज पैसा खाता है, क्या करता है पता नहीं, वो आदेश देता है झुग्गी तोड़ देता है, तेरे बाप के घर में रहेंगे हम जाकर। अगर सरकार गलत तथ्य पेश कर रही है तो उसकी जांच करनी चाहिए थी, आम लोगों की राय लेनी चाहिए थी। आम लोगों को जाने में सुप्रीम कोर्ट के पैसे ही नहीं होते जो सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करे। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते तो लाखों रुपए वकीलों की फीस कहाँ से दे, वहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट। जो अमीर लोग बोलते हैं उसकी सुनते हैं, जो गरीब आदमी बोलता है कोई नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट में।
उन्होंने कहा था कि फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, जज था ना, और उसको पता नहीं कि भाई बंद करने से हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार होंगे तो जाएंगे कहाँ। क्या था वो वकील, उसने कहा झुग्गी झोपड़ी वालों ने ही प्रदूषण फैलाया है, एकदम ऑर्डर मिल गया झुग्गी झोपड़ी तोड़ो। तो ये इनको पता नहीं भाई झुग्गी झोपड़ी तोड़ने से फिर कहाँ जाएंगे, इनको पता नहीं क्या भगवान की पूजा करेंगे, कितने प्राचीन समय के कथा कुथा करेंगे, गाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, पर ये इनको पता नहीं गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे तब तक कि वीरू बकरिया जब तक बकरियों का पेशाब पीता है, खिले हुए सरसों के सारों को खींचने वाले जब तक खुद नहीं सोते, सूजी हुई आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक जंग से लौट नहीं आता, कि पुलिस के सिपाही जब तक अपने ही भाइयों का गला दबाने के लिए विवश हैं, कि बाबू दफ्तरों में लिखते हैं अक्षर अपने रक्त से। हम लड़ेंगे तब तक कि दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। साथी जिंदगी के टुकड़े को हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तोड़फोड़ तो ये अंग्रेजों के ज़माने से भी चला आ रहा, सन 62 से भी, लेकिन पहले 120 गज जमीन देते थे, फिर 80 गज हुई, फिर उसके 62 गज जमीन हुई, फिर इस तरह के घटते घटते अब 25 के बाद सरकार ने अब 12 गज कर दी। इनको अब 12 गज में भी ये गुजारा कर लेंगे, अब इनको निकाल ही दो इस शहर से। जब इनको ज़मीन नहीं रहेगी तो ये निकल जाएंगे कहीं भी, चाहे कीड़ा मकोड़ों की तरह, चाहे कोई रोन दे, चाहे इनको कोई मार दे। तो ये सरकार की साजिश है कि इनको किस तरीके से देश से निकाला जाए, कि झुग्गी अगर टूट जाएगी तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो लोग रहेंगे कहाँ। तो ये सरकार की बनी बनाई प्लानिंग है। और तोड़ने के बावजूद भी सूची में नाम भी है, उनको पर्ची भी नहीं काट रहे, कागज़ भी हैं, कह रहे कि तुम्हारी पर्ची नहीं कटेगी, फलाना कागज़ लाओ, ढिकाना कागज़ लाओ, ये सारे डुला रहे हैं। ये 94 का प्रूफ है, वोटर लिस्ट की नहीं मान रहे हैं। जिसका 98 का होता है इसका 94 का लाओ, जिसका 94 का होता है 90 का लाओ। ये कोई बात है? 7000 में क्या एहसान करिए, 7000 ले रही है जब 12 गज जगह दे रही है। 7000 में 7 गज तो आदमी वैसे भी खरीद लेगा, 12 गज जगह 7000 में दान मांग रहे हैं ये लोग, कोई दान मांग रहे हैं सरकार से। इससे तो अपना 7-7 हजार तुम इतने उस सरकार को दे रहे हो, इतना खुद ही जो खरीद लो जाके। एक एक टेम्पो में 4 परिवार का सामान रखा हुआ, आप देखो ऐसे कचरे की तरह सामान भर रखा है, जैसे कि जानवर जा रहे हैं यहाँ से। विश्वास में मारा गया हमको, ये अभी तो दिलासा दे रहे थे नहीं यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, आज एकदम से इधर से पर्ची काट रहे हैं, इधर से बिल्डोजर चला दिया जनता के ऊपर। किसी का सामान निकला है, किसी का नहीं निकला, सारे बर्बाद कर दिए इन्होंने। सरकार ने बहुत बड़ा धोखे करे हमारे साथ। कितना काम चलता था, कितने लोगों का रोजी खाते थे, आज कहाँ जाएंगे? अगर हमारा ऐसा रोजगार चला जाए हम कहाँ जाएंगे? तुम ही बताओ, सरकार कहाँ देगी रोजगार? क्या दे रहे हैं रोजगार? मैं भाटीमान से आया हुआ हूँ, यहाँ कम से कम बवाना 75 किलोमीटर से कम नहीं पड़ता है। 30 रुपया लग किराया का, वहाँ से यहाँ से वहाँ तक का 3 बस में करनी पड़ती है। अभी तो कुछ नहीं जी, यहाँ तो भूखन मरने के आसार आ रहे हैं। लोग अपने अपने प्लॉट देखे पड़े हैं, किसी को मिला है, कोई फिर रहा है ITO में फिर रहा है, कोई राशन दफ्तर में फिर रहा है, कोई कहीं फिर रहा है, अभी कोई सुविधा से बैठा नहीं। What is a home? A vision? A dream? A life? Zion presents Lakeview Apartments and Penthouses at Faridabad. हम लोगों से धोखा किया ये। एक प्लाट पे 2 नंबर दे दिया, तो उनका सही कर दिया, मेरा ने गलत कर दिया, तो मेरे को घुमा रहा है चारों तरफ, वो वहाँ जाओ। और जहाँ हमको बिठाया गया है कम से कम वहाँ हमको 5 फुट गहराई में बिठाया गया है, एकदम गड्ढे हैं। I think what Delhiites lack is the sense of pride and arrogance, standing up and say, hey, I belong to Delhi and this is not the way you drive here, this is not the way you litter this place, this is my city. तोड़ के ना यहाँ कोई सुविधा नहीं दिया, वहाँ सुविधा थी, लाइट थी, पानी था, सब चीजों की सुविधा थी, और यहाँ पानी का भी प्रॉब्लम हो रही है। 2 घंटा लाइन लगते हैं तो 1 डिब्बा पानी मिलते हैं। अब जो 5 परिवार है, 1 डिब्बा से क्या होने वाला है? You're listening to me on Radio City 91 FM. The best beauty tip I can give anyone is to drink loads of water. It's great for your skin. It's amazing for your internal organs.
और लाइट वाले भी मांगते 100-100 रुपया, हम लोग 50-50 पर तैयार हैं और फिर लाइट आती है रोवे रोवे, बिल्कुल मंदे मंदे। And what I've written is an expanding territory that embraces and invites all to contribute to keeping sanskars, creating a healthy, educated, vibrant future with jobs for all and for all ages. In short, accelerating excellence. क्या बताएं अब पढ़ाई के बारे में। हम सरस्वती बिहार में रहते थे, नगर निगम में हमारे बच्चे पढ़ते थे। हमारे बच्चों के वहाँ पर हाई स्कूल है, पेपर चल रहे थे वहाँ पर, उसके बीच में आकर उन्होंने बिल्डोजर खड़े कर दिया हमारे ऊपर और हमारे मकान तोड़ने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन वो भी साधन यहाँ नहीं, बच्चे ऐसे नहर के रोड पर घूमते रहते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी 1 महीने का स्कूल था, पेपर हो गया, बच्चों का बर्बाद गया। अब यहाँ जिसके पास पैसे नहीं है, बस कहाँ से लगा देगा, गाड़ी कहाँ से लगा देगा। अभी कम से कम हमारे कैंप में 10-12 हजार बच्चा होगा पढ़ने वाले। Find out about our world-class higher education. The New Zealand Education Fair, 9th and 10th September 2006, 11 a.m. to 5 p.m. Taj Palace, New Delhi. For more information, log on to newzealandeducated.com. That education is the platform from which all these sanskars, as I mentioned earlier, can be filtered down. And it's important that the education system start implementing this bhav, as it were, in order to make our city a far more embracing city, as it were. खाने को तो यहाँ मिल नहीं रहा है और बच्चों को स्कूल कैसे लगा देंगे और कितना बड़ा भविष्य बिगड़ रहा है बच्चों का। हम तो अनपढ़ हो गए, हमारे तो ये पता नहीं है कि काली अक्षर होता क्या, लेकिन हमारे बच्चे भी तो पीछे बर्तन मांजने के काम करेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। लोगों का कारोबार चलता था, हम वहाँ कोठियों में काम करके 4 कोठी 5 कोठी काम करके हम माँ बच्चे सब निकाल लेते थे खर्चे। तो यहाँ पर आने के बाद में तो हमारा वो भी चला गया। यहाँ जब से लोग आए हैं बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ आने के बाद हमने सिर्फ 4 खम्भे गाड़े, 4 खम्भे गाड़ के हमने ईंट पत्थर निकालने के लिए गए, ईंट पत्थर भी सारे नहीं निकल पाए। हम बुढ़ा आदमी क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ के चले आए कि रोटी के कमाने के लिए गए तो यहाँ कहीं रोटी नहीं मिलेगी। कहते बाबा ये आपका काम नहीं होगा, यहाँ 18-19 साल का 20 साल का लड़का चाहिए। तो हम पे घर हो गए तो हम नौकरी से भी हो गए कि हम चौकीदारी करके 18-20 साल 2700 रुपया लाते भी थे। वो यहाँ भी नहीं, 12 घंटा में कहते 1600 रुपया देंगे, 1800 रुपया देंगे जी, काम करना करो, 12 घंटा लेंगे। अब इस अवस्था में क्या करें, बेटा के भी पढ़ाई कर रहे थे 8वां तक, पैसे के कारण से हमारे बच्चा नहीं पढ़ पाए, ना लड़की पढ़ रहे। मेरी आत्मा रोता है। 10 हमारे बच्चे बोले कि पापा पैदा करके रख दिया, माँ को आगे नहीं बढ़ाया, तो उनका तो खाना फर्ज है और हमारा फर्ज सुनना। अब जब हमारे पास नहीं है तो कहाँ से पढ़े। आदमी के काम भी नहीं लग रहे हैं, ये सरकार हमारे को पूर्ति देंगे। We have wonderful monuments and the new monuments are coming up. सारे जुगी हटा दिए, क्या वहाँ पर वो अकेले बिल्डिंग बना लेंगे कि हमारे को फिर जरूरत होगा वहाँ पर, तो फिर क्यों हमारे हटाएं, सरकार क्यों इतना अत्याचार करें हमारे साथ। Hence this conference, an attempt to kickstart the process of identifying and articulating brand Delhi. सरकार के दिमाग में ये है कि इनको खत्म कर दिया जाए। May I on behalf of CII congratulate you on taking this initiative and I assure you of our full support. मजदूरों को जाना चाही थी, यहाँ से भगाना चाही थी सरकार, यही करना चाही थी। जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के जो बिल्डिंगें बनाई उन्हीं मजदूरों को यहाँ से दिल्ली से निकालना चाही थी। इतनी मेहनत, इतने गहरे गहरे 300-300 फुट के खदाने हमने लगा रखे हैं। 300-300 फुट गहरे नीचे से हम बदरपुर लेकर के ऊपर आते हैं, जो आज पूरी दिल्ली में सप्लाई हो रही है आज, और उन लोगों ने हमको यहाँ ला के डाल दिया है। Paris is known as the fashion capital of the world. Singapore for its impeccable infrastructure. Las Vegas for its daring spirit, entertainment and casinos. सुनते हैं कि दिल्ली को पेरिस बनाना है, तो पेरिस बनाने मजदूर कहाँ जाएगा। अब कहीं कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई कहीं से आया है, यहाँ मजदूर अपना पेट पाल रहा है। उनका भी रेडी पटरी वालों को, उनको भी उजाड़ा जा रहा है, हमको भगाया जा रहा है। जाएँ तो जाएँ कहाँ, भी सरकार से पूछा जाए कि हम मजदूर जाएँ कहाँ। गाँव में हमारे पास रोजी रोटी नहीं है, परदेश में पड़े अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। सरकार यहाँ से भी भगा दे रही। अब जाएं तो कहाँ जाएं। वोट लेता है तो ये कहते हैं अगर मजदूर के हम सहायता करेंगे। A world-class city naturally means all the basic
civic necessities are available in plenty. लेकिन वो मजदूर की सहायता आज ये हो रही है जिसकी दुर्गति हो रही है कि हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, आओ हम ऐसे करेंगे, बाबा हम ऐसे करेंगे, जीत जाते हैं, उसके बाद साले के 2 धक्का। City free from mosquitoes, cattle and all that. मरने दो, हम ये कहते हैं गवर्नमेंट नहीं है अब। A city that has something for everyone. मजदूर के लिए गवर्नमेंट नहीं है। Decent homes, ample transport facilities, a good drainage system. हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, राक्षस है। If there is a will, it is possible to achieve it. How many of you see Delhi prepared for the 2010 Commonwealth Games? We can easily achieve it. That's a good vote, actually. And how many of you feel we won't be well prepared for the Commonwealth Games? Few are. Great. I mean, it's a city of optimism. I think at least that's... Will Delhi host better Commonwealth Games in 2010 than Asia in 1982? Yes, 3/4 of the people, 76% of the respondents said we do. मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ जो गेम हो रहे हैं उसके पीछे इनको हटाया जा रहा है। मेरा चाय कटिया है और काफ़ी तकरीबन 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर रोज़ की ये पोजीशन हो रही है कि कमेटी आ रही है और आन करके सामान उठा करके ले जाती है। अब परेशानी ये है सर, मेरा कोई धंधा दूसरा नहीं है, 5-6 साल हो गए जब से मैं ये इस धंधे को कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं 31 मार्च तक जितने भी ये बैठे हुए पटरी वाले सबको हम हटवाएंगे। रिक्शा वाले को भी हटा रहे, रेडी पटरी वाले को भी हटा रहे। और क्या तुम भी करो ना उनसे आदेश के, भी रिक्शे मत बंद कराओ। सीएनजी चला रहे हैं। अब वो क्या कस्टमर अपने सिर पे रख के ले जाएगा, उसके लिए ठेले की रिक्शे की जरूरत तो पड़ेगी। फिर उसके लिए क्या इंतजाम है? तुम्हारे घर से कौन लेने जाएगा? सीएनजी बस तो जाएगी नहीं, उस गली में घुस के जाएगा रिक्शा ही। किसी का यही रोजी रोजगार है कि नहीं? इसी से 4 बच्चे उसके पल रहे हैं। अब इस ठेले से 10 आदमी कमा के खा रहे हैं। भगाने वाली पोजीशन तो वो 10 ये ठेले बंद हो जाएं तो वो 10 आदमी कहाँ जाएंगे? भूखा मारना चाहते हैं ये लोग, और क्या। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनके लिए ट्रैफिक नहीं। 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं। 10 एक घर में 10 मेंबर, 10 मेंबर के बाद 10 गाड़ियाँ हैं। उनकी वो भीड़ भड़क का वो गाड़ियाँ नहीं कर रही क्या ठेले में ये रिक्शे ठेले यही भीड़ भड़क के ज़्यादा कर रहे हैं। और ये जो कहते हैं कि कर्जा लिया विश्व बैंक से, फ्लाईओवर बना रहे, कहेगा क्या क्या बना रहे, वो काम हम गरीबों के लिए क्या। One of the things Delhi walas are proud of is the Delhi Metro. The metro has changed the face of Delhi forever. From a city of construction to a city with connectivity, Delhi Metro has put great expectations and increased the aspirations of the city and its people for the best. कहीं की मेट्रो निकल रही है तो उसमें कौन जाएगा? मजदूर जाएगा। मजदूर तो साइकिल पे चलने वाला है, उसके लिए तो फुटपाथ भी इन्होंने खत्म कर दिया है। पैसे वाले यहाँ रहेंगे, गरीब भागेंगे, यही दिक्कत है, ये सच्चाई है। Make Delhi accessible to everybody. Delhi is no longer Durast, it is here for everybody. We are almost 20 years behind the rest of the world. What is it that which is going to attract the people, or we are going to sell to people? I have no knowledge about it, how to grant, so you are the best people and you will definitely do it. हमारी सरकार विश्व बैंक से बिका हुआ है। साजिश रचने वाला तो सब बाहर के ही लोग हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनी और ये कौन से कंपनी है ना, इनके हाथों बिक चुका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है कि हमारा सामान बिकेगा, हमारी यहाँ कंपनियां खुलेंगी, हमारा ही यहाँ बोलबाला होगा। उनके इशारों में वो झुग्गियाँ तोड़ के ज़मीन खाली होगी, या तो दिल्ली को सुंदर बनाना है, सफाई दिखाना है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी लोगों को वो वहाँ पर फैक्ट्री लगाने का, जैसे बिग बाज़ार क्या क्या नहीं आ रहा बाहर का, उसको लगाने के लिए ये सब काम चल रहा है। ये नरसिंह राव मनमोहन सिंह ने जो हाथ मिलाया ना, हाथ मिला के बहुराष्ट्रीय कंपनी को बुलाया, तब से ये अग्रम सग्रम हो रहा है। बच्चों का पार्क है, वो किसके लिए? गरीब बच्चे बेचारे झुग्गी झोपड़ी से दिल्ली के किनारे से पार्क में क्या बच्चे खेलने जाएंगे? ये कर्जा खूब खा रहा है सरकार,
और कर्जा टाइम पे दे नहीं पा रहा है, तो वो शर्तें होती है ना, और शर्तें वो नहीं निभा पा रहा है, तो उनके इशारे में नाचना पड़ रहा है। वो जो कह रहे हैं वो ये कर रहा है। A few years ago it used to be fairly simple. Delhi used to mean aggravation. It used to mean irritation. I really thought that Delhi was on the path downwards. It's impossible to get a telephone, impossible to get electricity, impossible to get water, impossible to get just about anything. You find those problems and you start fixing them one by one. Bijli, sadak, pani, three of the biggest problems. I have no knowledge about it, how to run, so you are the best people and you will definitely do it. Ample water supply. Dependable power supply. Decent homes. Ample transport facilities. City free from mosquitoes and cattle and all that. दिल्ली शहर सरकार जो हमारे के जियाने चाहें तो हमारे व्यवस्था फैक्ट्री कर दे, कमाए खाएं, हर चीज़ से सुविधा बनाने के दो, पैसा लोन। हम भी कोठी बना के रहेंगे। कोठी वाले कहते हैं ये झुग्गी झोपड़ी है, तो कोठी वाले को तो सरकार दे देते हैं लोन, फैक्ट्री के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए। हमारे क्यों नहीं देगा? इतना बड़ा इंडिया है, हमारे भी हक है, जो कोई को नाम हम भी रह सकते हैं। ऐसा बात नहीं है जो नहीं रखेंगे, हमारे हम भी लड़के रह सकते हैं। तो जैसे हमारे तोड़े बनाए घर, वैसे पैसा दो, बना दो, मेरे काम दो, बाल बच्चा। हम अनपढ़ है, बच्चे थोड़ी पर अनपढ़ होने देंगे। जमीन हमारी कहाँ है? और जो पैसा दिया गया था मजदूरों के लिए कि इनको बना के मकान दिया जाए, सरकार हमें पहले उसका हिसाब दे और हमारी ज़मीन का हिसाब दे दे। शहर तो जैसा मास्टर प्लान बना, तो मास्टर प्लान में जितने भी ये बहनें बेटियां लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ बैठ कर प्लानिंग करो ना कि वो कैसा मकान चाहते हैं, कैसा जगह चाहते हैं, रोजगार कैसा होना चाहिए। काम मिलना चाहिए। मजदूर को क्या चाहिए? रहने को घर हो, खाने को रोटी हो, मजदूरी हो बस। शहर हमारा जैसे एक घर के अंदर 4 बच्चे हैं तो चारों को माँ जैसे एक तरीके देखती है, उसी तरीके सरकार को भी सोचना चाहिए कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको एक जैसा बजट होना चाहिए, एक जैसी शिक्षा होगी तो एक जैसा रोजगार भी होना चाहिए और बराबरी का काम होना चाहिए, बराबरी का दर्जा होना चाहिए। बड़े कोठी वाले जो हैं वो हमारी जरिए से, चाहे वो काम भी करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ फैक्ट्री अगर है तो वहाँ मजदूरी हमारा काम कर रहा है, या कोठी में भी अगर वो बाहर काम करने जा रहे हैं तो हमारी बहनें जाती हैं वहाँ कोठियों में, सफाई का काम है, बर्तन वाली है, मांजने वाली या सफाई करने वाली, या बच्चों को रखने खाना बनाने वाली, चाहे झाड़ू ये प्रेस करने वाले ले लो, चाहे मोची को ले लो, चाहे सफाई स्लीपर को ले लो, कोई भी है, लेकिन होता वो मजदूरी है। अगर वो नहीं होगा जिस दिन, तो उस दिन शायद ये देश में ये कोठी वाले इतने नहीं लायक के हैं कि ये अपनी रोटी भी बना के खा लें। लेकिन हम हाथ क्यों जोड़ें? हमारा पूरा हक है, हमें भी दिल्ली के अंदर रहना और हमारे लिए भी मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो संविधान में भी है, संविधान में भी है। तो तभी तो मैंने बोला ना, वो हमारा तोड़ते हैं तो हमारे में इतनी ताकत क्यों नहीं है कि हम उनके जाके कोठियों को तोड़ दें। हमें पानी नहीं मिलता तो वो पाइप को हम तोड़ दें जाकर। ये बिजली सारे खंबे उम्बे तार, बिजली का तार सब काट दो। हम भी तो कुछ करें ना, क्रांति लाए। अगर वो सामने हमारे आ जाए तो हम उनका क्या हाल करेंगे ये हमारा दिल जानता है। इनको हम जूतों की माला पहना के जब निकालेंगे। हमारे इतने रैली में लोग इकट्ठे होंगे, हाथ में त्रिशूल, तलवार, डंडा, लाठी सब होगा, और हम लोग जैसे तुमने झुग्गियाँ तोड़ी है ना, ऐसे हम तुम्हारे मकान तोड़ने जा रहे हैं। हमें मार दो, हमें परवाह नहीं है। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, कि लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए। साथी जिंदगी के टुकड़े हम चुनेंगे।
Here is an opportunity for us to rebuild Delhi. What will be Brand Delhi? What is the USP? We can really rebuild Delhi. Paris is known as the fashion capital of the world. Without any slump, without any slump, without any slump. Hi, मैं हूँ समिया रेड्डी. नमस्कार, मैं नाना पाटेकर. Hi, I'm John Abraham and you're listening to Radio Mirchi 98.3 FM. Green City Group of Companies belong to the future of lifestyle. It's hot. क्या दे रहे हैं रोजगार? That's my vision. जी हाँ, शुरू हो रहा है SBI का डायमंड हंट. Enjoy world-class standard of living at Express Garden, Indirapuram. दिल्ली को पेरिस बनाना चाहती है जी. दिलदार दिल्ली. पेरिस बनाएंगे दिल्ली को तो. धड़कते दिल्ली. और इन लोगों ने हमारे घर तोड़ दिए. दुनिया ही दिल्ली. जब तक रहेंगे एक एक बुढ़े से लेकर जवान तक यहाँ पे कुर्बानी देंगे. मेरी दिल्ली है. अंधा कानून है. मेरी दिल्ली है. Call Fox Yellow Pages on 45454545 to find anything. मगर यार मैं तो अभी तक ट्रैफिक में अटका हुआ हूँ. पार्किंग फाइंड करो ना. पैसे वाले यहाँ रहेंगे, गरीब भागेंगे. यही दिक्कत है, ये सच्चाई है. इतना बड़ा इंडिया है, हमारे भी हक है जो कोई को नाम हम भी रह सकते हैं. ऐसा बात नहीं है जो नहीं रखेंगे हमारे, हम भी लड़ के रह सकते हैं.